اب ایک جو ہم نے اس وقت سوچا تھا، بیج بویا تھا، اب یہ پودا نہیں، اب یہ آہستہ آہستہ درخت بن رہا ہے۔ اور یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، جب آپ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حضور کے سامنے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس کی پھر غیبی مدد آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے مخالفت کی کہ یہ حکومت ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ میں کہ اسی ختم ہوندے ہوندے تہاڈا کام کٹ جائیں گے، فکر نہ کرو۔ اب شہباز شریف، اب کل عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا تو میں بندوبست کروں گا، اور پہلے تو ہم نے لے لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس لے لی ہے، اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ اب شہباز شریف پہ دیکھے، اس کی کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو رہی، اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ایسی پھوٹ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ایک جھوٹے کو تو بلا لیا نواز شریف نے اسی کلاس لینے کے لیے، اور نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ناکامی نظر آ رہی ہے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا۔ اور یہ شہباز شریف جو بہت ہوشیار بنتا ہے، چلاک بنتا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے۔ غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ شریف۔ شہباز شریف بڑا اور ساگ ڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا، اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے۔ انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا۔ آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے نا، کسی نے تو کھڑا ہونا تھا، تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ جتنی آپ کا یوتھ ہے، جتنے آپ کے ینگ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پہلے میں وہ کہتے تھے کہ شروع میں کہ شاید یہ ہماری جو جماعت ہے مسلم لیگ کاف، شاید پتہ نہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ یہ ادھر ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہترین دوست بیٹھے ہیں نا غلط باتیں سنانے کے لیے۔ تو جب میں نے اور راسخ اور حسین علی گئے، اس سے پہلے مون سے نے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں، آپ اس کو بھیج دیں لکھ کے ابھی، اور اس میں آپ کو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مونس کو ہم صدر ہے، یہ بنا دیں گے، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ بعد میں دیکھیں گے، پھر لوگ سمجھیں گے ہم نے سودے بازی کی ہے۔ کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا۔ صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے، تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا ہے الحمدللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے اتنے جلدی کام ہو گئے۔ کوئی ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا ہم نے، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، ہیلتھ کارڈ کا ہو، احساس پروگرام ہو، فلڈ ہو، کوئی موقع آیا تو سب سے پہلے پنجاب حکومت نظر آئی ہے۔ اور نئے ضلع بنے، اس سے ایڈمنسٹریٹولی بہت بہتر ہوا ہے۔ کل پھر میاں والی جو رہ گیا تھا اس کو بھی ہم نے ضلع بنا دیے، ڈویژن بنا دیے، اور حافظ صاحب کا ضلع تو ہم نے بنا دیے۔ ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا جا کے دیکھ لیں، پھر میں نے جلسہ کیا وہاں ان کو یقین دلانے کے لیے، اور بہترین ہو گیا۔ پھر کل انہوں نے کہا کہ نہیں آج آخری کیبنٹ میٹنگ ہے، میرا تحفہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تحصیل بنا دیں، وہ تحصیل بھی بنا دی ہم نے، راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ، اور راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ لگایا ہے، وہ میاں والی کے ساتھ نہیں لگایا، ایسے غلط پہلے بات چلی ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب بھی بہت محنت کرتے ہیں، میرا حلقہ انہوں نے ڈیولپ کیا تلا گنگ میں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم نے وہاں سے کھڑے ہوں گے۔ اور ان الیکشنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساری قوم آپ کو یکجا، متحد
PTI के साथ इमरान साहब की लीडर उनके झंडे थले इकट्ठी होती है आपको नज़र आएगी और कामयाबी से हम हमकिनार होंगे। अब जो भी आपने सवाल करने का ये पंजाब असम्बली गुज़िश्ता रात तहलील हो गई, गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। हाँ जी, अब वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत की अमल का आगाज़ हुआ। ये कि मेरा काम नहीं है। मैंने 3 नाम देने हैं। आज इंशाल्लाह रात को 9 बजे के बाद इमरान खान साहब को मिलेंगे तो उनसे मशवरा करके फिर 3 नाम हम देंगे और जो बाकी 3 नाम देने हैं वो तो हमज़ा ने देने हैं। तो अब पता नहीं वो आया कि नहीं आया, अभी तक मुल्क के बाहर ही है, ये तो आपको पता होगा। बुला लें। उन्होंने तो जो साहब कहा कि हम किसी भी पार्लियामानी कमेटी या इस तरह के अमल का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता नजर नहीं यार नहीं, देखो एक उनका अपना गवर्नर है, उसने हमें कहा जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और अल्लाह का शुक्र है हमने अचानक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सरप्राइज़ दी है तो हुण इंशाल्लाह फिर भुगतणगे। हुण उन्हां दी वारी है, जब बलवी साहब कहेंगे जी के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो बस फिर इनको जान के लाले पड़ जाएंगे। हाँ जी तो सब जो इमरान खान ने कहा था कि जी इतनी ज़्यादा हमारी गुर्बत हो गई है मुस्लिम लीग काफ के साथ कि शायद हम जो है वो अब इकट्ठे वो हमारे साथ ही आ जाए, तो क्या आप अपनी अलहदा शनाख्त बरकरार रखेंगे और क्या ये कैंपेन और सीट एडजस्टमेंट सारी जो है वो सारा कुछ कर लेंगे वो हम इंशाल्लाह। कल हमने मीटिंग रखी है रात को घर पे, तमाम हमारे जो MPs MNs हैं उसमें बैठ के पहले मशवरा करेंगे उनके साथ, पार्टी के लोगों को, कामल अली आगा को भी बुलाएंगे जो सेनेटर हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनको बुला के फिर मुशावरत के बाद फैसला करें। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपके बारे में वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि आपने जुमे के रोज़ तक उनको कहा है कि आप तरीक़े-ए-इत्माद जमा करवा दें ताकि असम्बली ना टूटे, आपके बारे में ये कहा जाए, क्या इसमें सदाकत है? अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं, जो नवाज शरीफ ने बुलाया ना उसकी क्लास लेने के लिए, वज़रा नहीं वज़ीर, तो वो क्लास से बचने के लिए वो अब फिर बहाने तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल कोई ये जो अब बात आपने की है हकीकत के बरक्स है। जब अभी आपने बात की है कि जब आप टाइम लेने के लिए गए हैं इमरान खान साहब के पास, तो उन्होंने मोदी साहब के हवाले से कोई आपको ऑफर की, वो ऑफर क्या था? यार वो खुद ही बताएंगे, अच्छा लगता है। होते हैं तो जाहिर है आप गुजरात डिवीजन है, गुजरांवाला डिवीजन है और दीगर 1-2 डिवीजन है जहाँ पे आपका असर सूट है, और बल्दियात में भी आपने बहुत सारा काम किया हुआ था। 13 से 14 जिला के अंदर आपके वो लोग मौजूद थे जो उसके लीड कर सकते थे जिला को। क्या आप समझते हैं कि आप तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब में इलेक्शन में जाते हैं तो फिर क्या देख रहे हैं कि कितनी सीटें जो है आपको लगता है कि आपका होंगी और PTI की? देखो इंशाल्लाह ये इमरान खान साहब की मेहनत है, वो रंग लाएगी। हम सारे मिल के मेहनत करेंगे तो नून लीग को इंशाल्लाह ताला इबरतनाक किस्म की शिकस्त होगी। चौधरी शुजात साहब से आपकी सुलह के मामला कहाँ तक पहुंचे, क्योंकि अगले इलेक्शन में टिकट तो पार्टी सदर ने जारी कर देते हैं, तो यार वो किस सैंपल में इलेक्शन लड़ेंगे, बल्ले के निशान पे लड़ेंगे या ट्रैक्टर के निशान पे लड़ेंगे? वो आपको ज़रा सब्र करना पड़ेगा, तो टाइम आ जाएगा आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा ये बताइएगा कि आप नून लीग का पंजाब में मुस्तकिल क्या देख रहे हैं? नून लीग दा असर होना है जो पीपल्स पार्टी का है। ये बताइए क्या आपके सियासी मुखालफी के इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने लोगों को नवाजने के लिए डिवीजन बनाए, जिले बनाए और अब आप आटे की लंबी लाइनें छोड़ के जा रहे हैं? कोई लंबे आए पहले क्लियर करो। देखो बात सुनो कि डिवीज़न जो बने हैं ना और जो ज़िले बने हैं, इससे आम उस इलाके के लोग इतने खुश हैं कि जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इंशाल्लाह आप जाके पता कर लेना। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि वो इलेक्शन नहीं हारेंगे अपने हल्के से। और आज आटे का वो हशर हो गया है, रेट इतना नीचे आ गया है, जाके पता तो करो। और हमने कोटा पहले 50% 100% कोटा दे दिया है, जितनी गंदम में मैंने कहा निकाल के रखो, और ट्रकों के ट्रक उन्होंने किए हुए हैं और लोग आटा ले रहे हैं, आटे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब क्या आप समझते हैं कि जनरल इलेक्शन की तरफ को बात जारी, इतना प्रेशर शहबाज शरीफ पर बिल्टअप हो रहा है कि कौमी असम्बली और दूसरी 2
दोनों सूबाई असम्बलियाँ भी टूट जाएंगी और आम इंतखाबात की तरफ बात चली जाएगी। उसकी नवाज शरीफ ने भी कह दिया कि इंतखाबात कराओ, ये समझते कि हम डरते हैं और इसके ऊपर बातचीत अब शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। और शहबाज शरीफ का हाल ये है कि उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलना, क्योंकि देखें MQM के हालात जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनका उधर झगड़ा है, बेशक जितनी मर्जी कोशिश ये बताइएगा कि 5-6 माह का आपका जो टेन्योर था इसमें आपने बहुत से काम किए हैं, वो कौन सा काम, एक ऐसे 2-4 काम ऐसे जो रह गए हैं जो आपके पास टाइम होता तो आप कर सकते? देखिए मेरी बात सुने, एक सबसे अहम जो काम है वो हमने जो 1122 को हमने अब देहातों तक और छोटी गलियों में पहुंचा दिया है। और हमने तमाम सूबों की जो ट्रेनिंग की है, जो पौधा लगाया था 1122 का, आप देख रहे हैं सिंध ने वही नाम हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ शुरू कर रहे हैं। और इसी तरह मैं ये समझता था कि हम जो रह गई है ना चीज़ें, वो इंशाअल्लाह ताला जब मौका मिला दोबारा हम करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। वो हमने ब्लू लाइन जो शुरू की है, ब्लू लाइन से आम पब्लिक के लिए बड़ा फ़ायदा होगा, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। लेकिन एनवायरनमेंट के लिए हमने वो हाइब्रिड बसें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला उसकी अप्रूवल हो गई है, वो बसें आपको फ़ौरन लाहौर में नज़र आएंगी। और फिर जो स्टेशन है, मिसाल के तौर पे जो बड़ा स्टेशन है ये वहाँ अनारकली में है, और एक उस साइड पे बाबू साहबू पे है, और 3 साइट्स हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ इस विंटर को सरवाइव करने के लिए आप वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट आ रही है, IT का काम होगा। जरदारी साहब लाहौर में है, अब तो असेंबली भी टूट गई, अब क्या कर रहे हैं वो? मुलाकातें शहबाज की यार उन्होंने उसे बैरिया घर है तो उसे आके तो अपना अच्छा चौधरी साहब ये बता दें कि रेस्ट हो रहा है। चौधरी साहब PDM की जमातों का जो प्यार मोहब्बत इत्तेफाक आपको इस वक्त नजर आ रहा है, नज़र तो आज हो इंतखाबात में रहेगा या ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ नज़र तो आ ही नहीं रहा। वो तो MQM नहीं उनसे मान रही। अभी आप देखेंगे फजल मान और इनकी लड़ाइयाँ होती तो जब इनको पिछू पड़ेंगे ना वो अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये भाग जाएंगे। तो सब आपको लगता है कि जो पंजाब तहरीर हो रही है, असेंबली और BJP हो जाएगी, उसके बाद वफाक पे दबाव बढ़ेगा कि आम इंतखाबात हो गई है, अभी से बढ़ना शुरू हो गया है दबाव। और वो तो खुद उसके चीफ मिनिस्टर ने कह दिए, कल आज मैंने जाने में पूछूंगा, परसों तक वो असम्बली तोड़ दी जाएगी। आम इंतखाबात होंगे कि सिर्फ 202 आम इंतखाबात होने हैं, ये कोई ज़मीनी इंतखाब नहीं है। और जितने प्रोजेक्ट हमने शुरू किए ना डेवलपमेंट के, वो इलेक्शन कमीशन उनको नहीं रोक सकता। अगली बार भी तब्दीला पंजाब से तब्दीला ही हो। यार ये अल्लाह ताला के काम है, फैसला अल्लाह ताला ने करना है। जो अल्लाह ताला करेगा हमने नेक नीति से खिदमत करनी है। पहले भी एज ए स्पीकर भी ये सारे कवानीन लोगों की मदद से जो मेरी टीम थी उनकी किए हैं, और अब जो यहाँ हमारी कैबिनेट थी, हमारी टीम थी, उनकी मदद से बेशुमार हमने काम ऐसे किए जो पहले नहीं हुए। और एक जो कैंसर का इतना बड़ा काम है, हर हॉस्पिटल में आपको अब अवेलेबिलिटी होगी और फ्री कैंसर ट्रीटमेंट बच्चों के लिए भी बाहर नहीं लेके जाना पड़ेगा इंडिया या किसी जगह पे। सर मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं अगर पंजाब में इलेक्शन होता है ना तो हर सीट पे मैं अकेला खड़ा होऊंगा, तो ये बताएं इमरान खान यार वो अकेला ना सारा जनरल इलेक्शन कौन अकेला खड़ा, खुदा का ना ही। अच्छा तो इसका का एक सवाल के जवाब दे देंगे कि आप कह रहे थे कि नून लीग को गैबी मदद नहीं मिलेगी अब, तो क्या आप समझते हैं कि जिन्होंने गैबी मदद देनी है वो न्यूट्रल होंगे? नहीं, बात सुने, मैंने ये कहा था कि देखें एक कोई ऐसी इनको ये ख्याल था कि ये समझ लेते हैं ना वैसे ही अपने लोगों को गलत गाइड करते हैं, अपने लोगों को गुमराह करते हैं कि जी हमें मददें आ रही हैं, हमें पता नहीं क्या आ रहा है। और ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी, हमें पता था ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। अब जिन्होंने ये झूठे वादे किए थे उसमें राणा सनाउल्लाह उस टीम को हेड कर रहा था,
उसको नवाज शरीफ ने बुलाया है ताकि उसकी क्लास ली जाए। वापस आएगा तो वो को पूछा जाए। मेहरबानी।